Hello, my dear student. I am Professor Harshal Nikam from Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. Today, we are going to discuss about the power amplifier, and from that, the topic number is 2.2, which based on classification of power amplifier. So, let's here it's a course outcome and PO mapping. The course outcome for this topic is use BJT as a high power amplifier. Means bipolar junction transistor is used for a high power amplifier and its PO mapping is, see, here is a program outcome. We are having 10 number of program outcome and it's mapped with the course outcome, means this core outcome is mapped with this program outcome. The very first program outcome, that is based on basic knowledge, is mapped at a level 1, and second program outcome is mapped with this course outcome at a level 2, means here it is a discipline knowledge. PO3, that is experiment and practice, is mapped at a level 3. Engineering tools, means PO4, is mapped at a level 2. Similarly, PO10 means lifelong learning is mapped at a level 1. So these are the COPO mapping for this topic, which is based on class. Here the some learning outcomes, means student may able to classify power amplifier circuit, explain with sketches working principle of given type of power amplifier, select relevant power amplifier circuit for given application, compare performance parameter of amplifier. So some course these are some learning outcomes, means ये टॉप वीडियो लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप सभी लोग एम्पलीफायर को पावर एम्पलीफायर को क्लासिफाई कर सकते हो। उसमें से जो भी टाइप रहेगा पावर एम्पलीफायर का उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और फॉर प्रॉपर अप्लीकेशन के लिए आप जो रिलेवेंट पावर एम्पलीफायर उसको सिलेक्ट कर सकते हो, और सभी पावर एम्पलीफायर को आप कंपेयर भी कर सकते हो। Before going to into detail for the classification of power amplifier, you must know about transistor and its types. Means आपको ये टॉपिक पढ़ने के पहले कुछ प्री रिक्विस्टेड नॉलेज की ज़रूरत है, जैसे कि ट्रांजिस्टर और उसके टाइप्स। ये आप सभी लोग जानते हो कि ट्रांजिस्टर दो प्रकार के हैं, बीजेटी और एफईटी। उसके साथ ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर एंड इट्स रीजन, यानी जो क्यू पॉइंट होता है, यानी ऑपरेटिंग पॉइंट होता है ट्रांजिस्टर का, वो कहाँ पे होना चाहिए, और डिपेंडिंग ऑन दैट पोजीशन ऑफ क्यू पॉइंट we know the application of transistor. That's why this knowledge is very important for learning the power amplifier. So here the classification of amplifier. See, these are some types of power amplifier, means we are categorize here a power amplifier into four types. So very first type is class A power amplifier, second class B power amplifier, third class C power amplifier, and last class AB power amplifier. See, जिसको अपन हाई पावर एम्पलीफायर बोलते हैं, वो हाई पावर एम्पलीफायर चार टाइप्स में क्लासिफाइड है। उसमें से पहला है क्लास ए पावर एम्पलीफायर, सेकंड क्लास बी पावर एम्पलीफायर, क्लास सी पावर एम्पलीफायर एंड क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर. This classification of power amplifier is classify
on the basis of position of Q point on AC load line। मतलब AC लोड लाइन पे जो Q पॉइंट होगा ट्रांजिस्टर का, उसके पोजीशन के आधार पे हमने ये पावर एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन किया है। फॉर एग्जांपल, Q point in class A power amplifier is at the center of load line। यानी AC लोड लाइन में Q point ट्रांजिस्टर का सेंटर पे होता है। सिमिलरली क्लास B, क्लास C, क्लास AB ये पावर एम्पलीफायर भी डिपेंडिंग ऑन पोजीशन ऑफ Q पॉइंट के आधार पे अपन ने क्लासीफाई किया है। तो अपन वन बाय वन अभी ये क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास AB पावर एम्पलीफायर पढ़ने वाले हैं। Before going to in detail about the class A power amplifier, you must to know about the AC load line and Q point को अपन यानी AC लोड लाइन क्या होता है और Q पॉइंट किसको बोलते हैं अपन, ये समझना जरूरी है। यहाँ पे हमने आउटपुट वेवफॉर्म निकाली है। सी, दिस इज द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। We know that in common emitter configuration we are taking emitter as a common terminal. So output voltage is VCE, means V for voltage, and CE means it is the output voltage taking in between collector and emitter. Here IC means it is the output current, means it is the collector current. And these are some graphs related to the our output current, and this particular line is drawn under the AC operating condition. That's why this line is called as a AC load line. This is our input waveform, means we are providing the input to this common emitter configuration, and this is our output waveform which taking across the output terminal of transistor. This particular point, see, this particular point is called as a Q point, means if this point is at the center of the AC load line, then we can say that the power amplifier is class A power amplifier, because the position of this Q point means it is a quiescent point, or it may called as a operating point, is at the center. So similarly, see, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है। इस टेबल पे अपन ने 4 टाइप्स लिए हैं पावर एम्पलीफायर के। क्लास ए पावर एम्पलीफायर में Q पॉइंट की जो पोजीशन होती है वो रहती है एट द सेंटर। मतलब ये देखिए इस लाइन पे यहाँ पे ये जो Q पॉइंट है, ये Q पॉइंट सेंटर पे है, इसलिए अपन उसको बोलेंगे क्लास ए एम्पलीफायर। क्लास बी पावर एम्पलीफायर में Q पॉइंट की पोजीशन होती है इन कट ऑफ रीजन। मतलब ये जो है इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है वो है कट ऑफ रीजन। यहाँ पे अगर Q पॉइंट आता है तो वो बन जाएगा क्लास बी पावर एम्पलीफायर। क्लास सी पावर एम्पलीफायर में होता है Q पॉइंट की पोजीशन जस्ट अबव द कट ऑफ। मतलब ये जो कट ऑफ रीजन है इसके थोड़ा ऊपर, मतलब यहाँ पे अगर Q पॉइंट की पोजीशन है तो वो बन जाएगा क्लास सी पावर एम्पलीफायर। और बिलो द कट ऑफ रीजन, मतलब यहाँ पे अगर Q पॉइंट की पोजीशन होती है तो वो बन जाएगा क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर। So let's start with class A power amplifier. This class A power amplifier, its circuit is classified into 2 types. Means first one is class A direct coupled power amplifier, and we can also use in transformer coupled amplifier. तो पहले हम देखते हैं class A direct coupled amplifier. See, this is the circuit diagram of class A power amplifier. Here we can use only single transistor, यहाँ पे अपन ने एक ही ट्रांजिस्टर यूज किया है, और ये ट्रांजिस्टर अपन ने फिक्स बायस पे कनेक्ट किया है। मतलब
जैसे ट्रांजिस्टर बायसिंग की टेक्निक्स होती है, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग टेक्निक्स, फिक्स बायसिंग टेक्निक्स, उसमें से हमने यहाँ पे फिक्स बायसिंग टेक्निक यूज़ की है। मतलब प्लस वीसीसी जो सप्लाई है वो आउटपुट जंक्शन में भी रहेगा और इनपुट जंक्शन में भी रहेगा, यानी वो दोनों जंक्शन के लिए सप्लाई कांस्टेंट है। यहाँ से हमने इनपुट दिया है, इनपुट सोर्स, और ये इनपुट सोर्स डायरेक्टली अपन ने कपल्ड किया है to the base terminal of transistor, and we are getting the output from this collector terminal. यहाँ पे हमने डायरेक्टली इनपुट लेके बेस टर्मिनल को, ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल को कपल्ड किया है, इसलिए अपन इसको बोलेंगे क्लास ए डायरेक्ट कपल्ड पावर एम्पलीफायर. So on the basis of this we are discussing some related to the class A power amplifier. The very first point is we already discussed fixed biasing techniques is used. इसमें हम फिक्स बायसिंग टेक्निक यूज करने वाले हैं और वो हमने डायग्राम में देखा भी है. RB is the base resistor which adjusted in a such a way that Q point which lies at the center of load line. मतलब जो बेस रजिस्टर है RB है, वो RB रजिस्टर हमने इस तरह से एडजस्ट किया है कि उस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर का Q पॉइंट वो लोड लाइन पे कहाँ पे रहे, सेंटर पे. अगर वो लोड लाइन पे अगर सेंटर पे नहीं रहता है तो अपने पावर एम्पलीफायर का टाइप्स चेंज हो सकता है, क्योंकि Q पॉइंट की पोजीशन क्लास ए एम्पलीफायर में सेंटर पे होना अनिवार्य है. आउटपुट इज डायरेक्टली फेड टू द नेक्स्ट स्टेज विदाउट एनी हार्मोनिक डिस्टॉर्शन. यहाँ पे डिस्टॉर्शन यानी होता है नॉइज, जिसके वजह से अपना आउटपुट सिग्नल डिस्टर्ब हो सकता है. और अब इस क्लास ए एम्पलीफायर में हम डायरेक्टली एक स्टेज का आउटपुट नेक्स्ट स्टेज को दे सकते हैं और उसमें किसी प्रकार का हार्मोनिक डिस्टॉर्शन नहीं होता है. पावर एम्पलीफायर में जो ट्रांजिस्टर होता है वो पावर ट्रांजिस्टर यूज होना ज़रूरी है, क्योंकि पावर एम्पलीफायर में जो इनपुट पावर रहेगा वो हमेशा लार्ज क्वांटिटी में रहेगा, इसलिए पावर एम्पलीफायर को हम लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर भी बोलते हैं. इसलिए इसकी ज़रूरत ये है कि यहाँ पे पावर ट्रांजिस्टर यूज होना ज़रूरी है. एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू कंस्ट्रक्ट. इसको हम ये डायरेक्ट कपल्ड होने की वजह से इसको हम सिंपल में कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं. The next क्लास ए ट्रांसफॉर्मर कपल्ड पावर एम्पलीफायर. और अभी यहाँ पे हमने डायरेक्ट कपलिंग की जगह पे हमने यहाँ पे कपलिंग करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज किया है. सी, दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर. तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ से आउटपुट लेंगे और डायरेक्ट अपन ने, यानी आउटपुट जब लेंगे अपन तो वो आउटपुट ले रहे हम थ्रू द ट्रांसफार्मर. मीन्स इंस्टेड ऑफ लोड रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस अपन यूज करते थे उसके जगह पे अभी अपन यूज कर रहे हैं ट्रांसफार्मर, इसलिए अपन इसको बोलेंगे ट्रांसफार्मर कपल्ड पावर एम्पलीफायर, मतलब क्लास ए ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर. यहाँ पे अपन इनपुट दे रहे हैं, ये यहाँ से इनपुट सिग्नल जाएंगे थ्रू दिस सी इन, मतलब इनपुट कैपेसिटर. दिस R1 R2 RE ये फॉर्म करेगा वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, एंड C इज अ एमिटर कैपेसिटर, मतलब एमिटर बाईपास कैपेसिटर जो AC सिग्नल को लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा. और जो भी सिग्नल यहाँ से आने वाले जो सिग्नल रहेंगे वो एम्पलीफाइड होंगे, वो एम्पलीफाइड मिलेंगे अपने को कलेक्टर टर्मिनल पे. और कलेक्टर टर्मिनल में हमने यहाँ पे यूज किया है ट्रांसफार्मर. तो ट्रांसफार्मर जो कि यहाँ पे परफेक्ट इम्पीडेंस मैच करता है, तो जितने सिग्नल यहाँ पे एम्पलीफाई होंगे वही सिग्नल सेकेंडरी वाइंडिंग में चले जाएंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग से थ्रू दिस लोड, अपन ने यहाँ पे इसको लोड बोला है या फिर आप इसको लाउड स्पीकर भी बोल सकते हैं. तो जितना पावर इनपुट से आएगा वो पूरा का पूरा पावर एम्पलीफाइड होके अपने को कहाँ पे मिलेगा, लोड में, यानी लाउड स्पीकर में, क्योंकि ट्रांसफार्मर की वजह से यहाँ पे इम्पीडेंस परफेक्ट मैच होते हैं, इसलिए इसमें हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बिल्कुल भी नहीं होता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर डिस्कसिंग सम
So very first important point is here instead of load resistor transformer is used to match the load impedance. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि यहाँ पे अपन लोड रजिस्टर जो कलेक्टर रेजिस्टेंस था उसके जगह पे अपन क्या यूज कर रहे हैं ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर हमेशा इम्पीडेंस परफेक्ट मैच करता है. Efficiency is better than direct coupled class A amplifier. अभी मान लीजिए यहाँ पे इम्पीडेंस परफेक्ट मैच हो रहे हैं. इम्पीडेंस परफेक्ट अगर मैच हो रहे तो अपना पावर जो है इनपुट का पावर वो पूरा का पूरा पावर लोड में ट्रांसफर होगा, इसलिए इसकी इफिशियंसी बेटर रहेगी एज कंपेयर टू डायरेक्ट कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर. लेस हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इन द आउटपुट, यानी आउटपुट में इम्पीडेंस अगर परफेक्ट मैच हो रहे तो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन भी कैसे रहेगा कम. पावर इज सेविंग कंपेयर टू डायरेक्ट कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर. यहाँ पे पावर सेव होता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर, क्योंकि इम्पीडेंस अगर मैच हो रहे तो इम्पीडेंस मैच अगर होते हैं तो पावर पूरा का पूरा लोड में ट्रांसफर होगा. तो कोई भी यहाँ पे पावर डिसिपेट नहीं हो रहा, इसलिए पावर क्या हो रहा है यहाँ पे सेव. यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर, यस दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस क्लास ए ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर बिकॉज वी आर यूजिंग हियर ट्रांसफॉर्मर. तो ट्रांसफॉर्मर हेवी होता है, उसका साइज भी ज़्यादा होता है, इसलिए सर्किट क्या होगा बल्कि बनेगा. Now here we will discuss about the waveform of class A power amplifier. वेवफॉर्म किस तरह से होती है क्लास ए पावर एम्पलीफायर, और ये जो वेवफॉर्म है ये वेवफॉर्म क्लास ए डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर और क्लास ए ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर के लिए कॉमन रहेंगी. सी दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ क्लास ए पावर एम्पलीफायर. हियर we are taking the VCE and here we are taking the IC. VCE means it is a voltage between collector and emitter, and IC means it is the output current. Here it is the IC max means maximum IC current. Here it is the IC mini means it is the minimum IC current, because here we are taking the IC means collector current, and here we are taking the voltage between collector and emitter. So similarly here it is a VCE max means maximum voltage between collector and emitter, and here it is minimum voltage between collector and emitter, and this is the Q VCEQ, and here it is the ICQ. See, in class A power amplifier this Q point means it is the quiescent point, or it may called as a operating point of transistor, is always at the center of this AC load line. Then and then we call as this is the class A power amplifier. Okay, so we apply here the input waveform. See here it is the input waveform, और यहाँ पे अपने को मिलेगा आउटपुट वेवफॉर्म, and the line which is drawn under the AC operating condition is called as a AC load line. So important points related to the waveform of class A amplifier. The very first one is line drawn under AC operating condition called as AC load line. This is very important. Second one, conduction angle of class A amplifier is 360 degree. यानी पूरी की पूरी वेवफॉर्म जितने अपन ने इनपुट में अप्लाई की है वो पूरी की पूरी वेवफॉर्म अपने को आउटपुट में मिलने वाली है. तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि कंडक्शन एंगल क्लास ए एम्पलीफायर का कितना है 360 डिग्री. Q point is lies at the center of AC load line. क्लास ए एम्पलीफायर में ये कंडीशन ही है कि उसका Q पॉइंट कहाँ पे होना ज़रूरी है, सेंटर ऑफ AC लोड लाइन. एंड द इफिशियंसी ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर इज 50%. इफिशियंसी हमेशा क्लास ए एम्पलीफायर की एट मैक्स होती है 50%. सो विद आवर today's lecture, after
discuss our today's topic based on classification of power amplifier. We all are understand about the classify power amplifier circuit, explain with sketches working principle of given type of power amplifier, select relevant power amplifier circuit for given application, and last compare performance parameter of amplifier. Thank you so much.